Welcome, student. In today's session, we will cover the numericals on work done by constant forces and work done by the variable forces, and potential energy, conditions under which the potential energy is minimum or maximum, stable equilibrium, unstable equilibrium, neutral equilibrium. ये सब टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। Work done in time t on a body of mass m, which is accelerated from rest to speed v in time t1 as a function of time t, is given by 1 by 2, first option, m v t square upon t1, second option, m v t square upon t1, third option, 1 by 2 m v t upon t1 whole square into t square, fourth option is 1 by 2 m v square t square upon t1 square. So this is a very simple question, student. हम इसे सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन से कर सकते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स है और t1 टाइम में बॉडी कितनी स्पीड गेन करती है v। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। Initial speed is 0, acceleration is force, so this is t1. So we will get t1 is v by a. But as you know that to calculate the work, what we require, displacement v by a can be written as force upon m. So t1 can be written as vm upon f. So this is our first equation. Now we will use the second equation of motion for displacement, s equal to ut plus half at square. So it can be written as s equal to half a t1 square. अब हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F can be written as a by m s। हम s की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ a t1 स्क्वायर। तो अब हमें मिला a स्क्वायर, एंड t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 by 2। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें अब a की वैल्यू की जरूरत है, तो a की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट। वेट अ मिनट। Force is mass into acceleration. एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं v by t1 और s की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 by 2 a t1 स्क्वायर। तो फिर से हमारा जो आ गया इक्वेशन वो आ गया m v a t1 by 2। तो फिर से हमें a की वैल्यू रखनी पड़ेगी v by t1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये mv स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए। There is some mistake in the question. हमें निकालना है वर्क डन इन टाइम t
और बॉडी एक्सलरेट होती है रेस्ट स्पीड v इन टाइम t1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t. तो हाफ एम वी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा. कुछ इसमें दिक्कत हो रही है स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं. लेटर ऑन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए इसको ले लेते हैं. कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from height 1 kilometer. It hits the ground with speed of 50 meter per second. Take g constant with a value of 10 meter per second square. The work done by the gravitational force. Second, the resistive force of air. अब देखिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन. बॉडी कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है. और किस हाइट से गिर रही है? 1 किलोमीटर हाइट से गिर रही है. तो हाइट तो हमें दिया हुआ है 1000 मीटर. मास दिया हुआ है हमें 1 ग्राम 1/1000 kg. And work done by the gravitational force can be written as mgh, gravitational force into displacement. 1/1000, g is 10 and h is 1000. So this will get cancelled. The answer is 10 joules. ये थर्ड ऑप्शन हमें दिख रहा है. और ये वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर. अब देखिए यहाँ रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ डेटा चाहिए होगा which is not available. तो हम क्या करेंगे? थर्ड ऑप्शन को ही टिक करेंगे. Force of resistance acts opposite to the velocity, and velocity body will gain the velocity in downward direction. The force of resistance definitely will act in upward direction, but we are not given any data to calculate the resistance force. So our answer is 10 joule, which is available with third option. So without data, we cannot calculate the resistive force. Next, force F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 meter. तो इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं. हमें एरिया निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे. तो फर्स्ट फिगर का एरिया एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 2, ये आ गया 6. सेकंड जो फिगर है वो भी एक रेक्टेंगल है, और आप ध्यान दीजिए यहाँ बेस लाइन चेंज हो रही है 3 मीटर टू 7 मीटर, तो ये होना चाहिए 4 मीटर. तो 4 इंटू 2 8. तो अगर इसको ऐड कर दे 14. थर्ड इज ए ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट. हाइट इज 2 और ये चेंज हो रहा है 7 टू 12, तो ये होना चाहिए 5. तो ये आ गया 5. तो आंसर आना चाहिए 19. A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर हम ऐड करेंगे तो 19, which is not available in the choice. So we will take 18 joule, nearest value. We will take 18 joule, nearest value. So this question is based on the concept of area. Wherever we are given the force displacement diagram, तो हम उसका एरिया निकाल के वर्क डन को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. एक बार फिर चेक कर लें. 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6, और यहाँ पर
अच्छा, हाँ, यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हमें A1 एरिया नहीं लेना है क्योंकि वो ग्राफ का पोर्शन नहीं है, दैट इज नॉट द पोर्शन ऑफ ग्राफ। यस यस, जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा हम डिस्कस कर लें कि ग्राफिकल पोर्शन कौन सा है। चलिए बता देते हैं आपको। यस, ये ग्राफ है हमारा। तो यहाँ तो एरिया 0 होगा। यस यस, अच्छा क्वेश्चन है। तो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया ओनली। अब हमें सिर्फ यही एरिया निकालना है। और कौन सा निकालना है? एक A1 निकालना है और एक A2। सो A1 विल बी 4 into 2, 8, एंड A2 क्योंकि वो ग्राफ में नहीं है, दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और ये ट्रायंगल हो गया, बेस हो गया इसका 5 और हाइट हो गई 2, so it is 5, so our A1 plus A2 will come as 5 plus 8, 13 जूल। तो ये तो हमें मिटा देना चाहिए, ये 18 जूल तो आंसर इसका होगा नहीं। 13 जूल will be the answer, so the correct option is fourth। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस। yes yes, we should identify the graph। इसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter, the work done against the friction। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम इसका बेसिक देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये देखिए, अब द प्लेन गए हम और हमारी हाइट कितनी थी यहाँ पर? 10 मीटर। तो जब बॉडी को ऊपर ले जाएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी टॉप ऑफ द प्लेन पर। मास दिया हुआ है आपका 2 जी, हमने 10 ले लिया और हाइट 10 ले ली। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना हुआ? 200 जूल, 200 जूल। पर हमने यहाँ वर्क किया है, बट हियर वर्क डन is equal to work done against gravity there must be some friction present, work done against friction, against friction, so work done is 300 against gravity 200, and work done against the friction, let it is WF, so WF will come as 100 joules, so the correct option is second। This is a very good question, correct option is 100, क्योंकि आपने टोटल वर्क किया था 300, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ 200, तो 100 गया कहाँ? तो डेफिनेटली टोटल आपने वर्क किया 300, तो 100 जूल मस्ट बी कंज्यूम्ड फॉर व्हाट यू कॉल इट, फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप इसको। A uniform chain of length L and mass m
This is from your previous year paper. Is lying on a smooth table, 2/3 of its length is hanging down over the edge of the table. If g is the acceleration due to gravity, the work done to pull the hanging part on the table is. तो hanging part को हमें टेबल पे रखना है. तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट पहले भी बताया था, एक बार हम इसको फिर क्लियर कर देते हैं. ये चेन है हमारी, इसका कुछ पार्ट टेबल पे टॉप पे रखा हुआ है और ये L/3 है और बचा हुआ पार्ट जो उसका हैंग कर रहा है वो है 2L/3. यहाँ हमें कैपिटल L ले लेना चाहिए. हाँ, तो ये है L/3 टेबल टॉप पे और 2L/3 हैंगिंग पार्ट है. तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि भाई हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है. आपको बताया था ये. तो हैंगिंग पार्ट की टोटल लेंथ है 2L/3, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसका आधा, तो ये हो गया L/3. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की टेबल टॉप से डिस्टेंस कितनी होगी L/3. और मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, अब देखते हैं मास ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना है. डेफिनेटली 2m/3 होगा क्योंकि 2/3 का मास होगा 2m/3 अगर टोटल मास m है. तो रिक्वायर्ड वर्क डन होगा mgh मास 2m/3 g और किस हाइट पर हमें ले जाना है L/3. तो हमारा आंसर आएगा 2mg L/9. तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है. दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. हमेशा हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं. और मेरा तो आपको यही सजेशन है कि आप सिंपल कंसेप्ट यूज करिए. आप ये सपोज करिए कि जो टोटल मास होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कंसंट्रेटेड होगा. हैंगिंग पार्ट की टोटल लेंथ कितनी है 2L/3, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे. बहुत सिंपल है. 1/2 से आपको क्या करना होगा, 1/2 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. अब देखिए, दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन. इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए. इसको नोट कर लीजिए. अ बॉडी ऑफ मास m tied to a string, ठीक है, is lowered at a constant acceleration of g/4 through a vertical distance h. The work done by the string. देखिए, स्ट्रिंग में जो फोर्स ऑफ टेंशन होगा वही वर्क डन करेगा. तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारा स्ट्रिंग हो गया. और ये बॉडी हो गई. और इसको हम लोअर डाउन कर रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से a. और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा t. ये mg. तो हम जानते हैं जब स्ट्रिंग को लोअर डाउन करते हैं तो टेंशन क्या होता है mg माइनस ma. हमें यहाँ पर a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है g/4. तो फोर्स ऑफ टेंशन हमने निकाल लिया 3mg/4. 3mg/4. अब देखिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है.
मास कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, फोर्स ऑफ टेंशन कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी एच cos 180 डिग्री यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि टेंशन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, डाउनवर्ड है, इसको ध्यान रखिए। दूसरी चीज, cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखनी चाहिए, -1 होती है। तो वर्क डन हो गया माइनस टी एच। तो फर्स्ट और सेकंड आंसर तो हो ही नहीं सकता, थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं कौन सा है, -3 mg/4h। तो ये हमें आंसर मिल गया थर्ड। तो कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आपने इसे नोट कर लिया, इसको क्लियर कर रहे हैं। टेक योर टाइम, आराम से नोट करिए, कॉपी को बहुत स्ट्रांग बनाना जरूरी है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस। तो भाई सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो फोर्स है आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जरा हम इसके को डिस्कस करना चाहेंगे। और ये जो आपका फोर्स है ये थीटा एंगल पे आ रहा है, इट इज लाइक दिस। ओके, अब आप इसे कह सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा। अब हमें फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट तो हमें समझ में आ रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये, कितना होगा, एफ कॉस थीटा। और दूसरा होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वो होगा एफ साइन थीटा। तो ये तो बात हो गई फोर्स को रिजॉल्व करने की। अब आप जानते हैं कि जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करती है, अपवर्ड। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं म्यू एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी के वर्टिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो मोशन ऑफ बॉडी अलोंग वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस क्या हो गए, एन प्लस एफ कॉस थीटा, सॉरी एन प्लस, एक मिनट, ये यहाँ हम कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो हमें बोल दिया। तो हम जानते हैं पहली चीज की वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कैसे हम निकालेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, माइनस म्यू एन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, लेफ्ट में। तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री, इसलिए माइनस म्यू एन इंटू एस। म्यू, अब एन की वैल्यू
mg plus f sin theta, mg plus f sin theta, ठीक है, इनटू s। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए इसका सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आपने सीखा इसे। पॉइंट नंबर 1, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, नेगेटिव। तो फर्स्ट और थर्ड आंसर देखिए वो तो हम नहीं सोचे। दूसरा, हम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि हम फोर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम फोर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं तो आप समझिए हमारा काम आसान हो गया, और अगर हम फोर्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, तो आप समझिए हमारा काम मुश्किल हो गया। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें थी। एक तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन माइनस म्यू एन एस होता है उसकी कंसेप्ट, और तीसरी कंसेप्ट थी फोर्स को रिजॉल्व करना। अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वर्क डन, लैंग्वेज पर हमेशा ध्यान दिया करिए। द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 kg मास एट 1 मीटर हाइट इन 1 सेकंड विल बी। सबसे पहली चीज तो देखिए कि मास कितना है, 10 kg। जी दिया नहीं हुआ है तो हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ वर्क डन में टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइम तब इंपॉर्टेंट होता है जब हमें पावर कैलकुलेट करना पड़ती है, वर्क डन अपॉन टाइम। और हाइट भी हमें मालूम है कितना, 1 मीटर। तो वर्क डन होगा mgh 10 into simple question into 1, so it is 98 joule. So student, you are getting the answer as second. तो अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो मैंने देखा है और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, वो मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। पेपर सिंपल है, इसलिए क्या हो रहा है कि जो क्लोजिंग परसेंटेज है, जो मेडिकल की सीट है, वो एक बहुत हाई मार्क्स पर क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। उसका रीजन है, ओवरऑल पेपर सिंपल है। आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप 1 मिनट में कंसेप्ट कैलकुलेशन कम कराना चाहता है, 1 मिनट में कंसेप्ट को चेक करना चाहता है, और की आइडिया आपको मालूम है कि नहीं उसको वो चेक करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स F इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A force F equal to kx square acts on a particle at an angle 60 degree with x-axis. The work done in displacing the particle from x1 to x2. तो देखिए इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की यहाँ इस क्वेश्चन में क्या थी, x1 थी, और फाइनल पोजीशन कितनी थी, x2 थी। ठीक है। और दूसरी बात, F इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के कांस्टेंट है और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये जो फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है F इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये क्लियरली बोलता है कि अगर x चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, और वो डिस्प्लेस कर रहा है पार्टिकल को अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x1 टू x2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हमारा फोर्स हो गया के एक्स स्क्वायर, और कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है ये, 60 डिग्री, और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई।
आंसर निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x1 to x2 f डॉट s। ये तो पहली कंसेप्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, और s है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है x, तो हम इसको x लिख लेते हैं। ओके, नाउ इट इज ऑल राइट। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। इतना नोट कर लीजिए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिखता है, ऐसा दिखता है कि ये सिर्फ एक इंटीग्रेशन करने से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और फोर्स एक्स डायरेक्शन से कितने एंगल पर एक्ट कर रहा है, 60 डिग्री। तो देखिए ये तो हो गई कंसेप्ट। अब बचा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन अब तक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो एडवाइस ये है कि आपकी कॉपी में क्वेश्चन लिखा होना चाहिए एक, दूसरा जहां क्वेश्चन लिखा होना चाहिए उसके नीचे सॉल्यूशन होना चाहिए दो, जिससे कि आप लास्ट 1 मंथ में या 3 वीक्स कह लें, 20 डेज, क्वेश्चन को रिवाइज कर सके। मेंटल रिवीजन भी होता है। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम जगह क्रिएट करते हैं स्टूडेंट। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो वर्क डन हो गया x1 to x2, f की वैल्यू हो गई kx² dx। अच्छा, x की वैल्यू होगी, हमने वो भी लेना है, क्या कहते हैं, cos 60 इक्वल टू x1 to x2 के बाहर 1/2 बाहर cos 60 1/2 होता है, बचा x²। तो अब x² का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x to the power n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये लगा दिया। तो ये हो गया x³/3 लिमिट्स x1 to x2। लिमिट से भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये 3 बाहर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर k/6 कर देगा, तो अंदर बचेगा x3। तो पहले x की जगह हम लिखेंगे x2, फिर माइनस करते हुए x की जगह लिखेंगे x1। तो स्टूडेंट ये हमारा लगता है हमें आंसर आ गया है, थर्ड। तो ये डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पर हमें करना तो एक बार पड़ेगा, एंड वी नीड टू रिवाइज देम टोटली। हमें उसे रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A force of 10 Newton displaces an object by 10 meter। ठीक है, if work done is 50 joule, then direction of force make an angle with the direction of displacement। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ वर्क डन तो हमें दिया हुआ है,
50, फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है 10, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है 10, ये देखिए दिया हुआ है 10 cos थीटा। वर्क डन भी दिया हुआ है 50 जूल, हमने रख दिया। फोर्स भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। तो अब ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5/10 इज इक्वल टू cos थीटा, सो विल गेट cos थीटा एज 1/2। और 1/2 आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। ओके, यू मस्ट हैव नोटेड डाउन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इस तरह का जो वेरिएशन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, नोट कर लीजिए आराम से, टेक योर टाइम। हमें टाइम की चिंता नहीं है, हमें सीखने की चिंता है और एक्यूरेसी की चिंता है और रिवीजन की चिंता है। A body of mass 6 kg under a force which causes displacement in it is given by S equal to t square by 4 meters, where t is time. The work done by the force in 2 seconds. तो देखिए वर्क डन बाय द फोर्स। अब सोचिए कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, टी स्क्वायर बाय 4। तो ds बाय dt, समझ गए आप, डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेलोसिटी। 1/4 तो कांस्टेंट है, उसका होगा नहीं, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो वेलोसिटी हो गई t/2। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dv बाय dt, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कहलाएगा स्टूडेंट एक्सेलरेशन। देखो यहाँ 1/2 तो कांस्टेंट है, ये t का डिफरेंशिएशन, t की पावर कितनी है, 1 है, कितना होगा 1। तो ये देखिए हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, कितनी, 1/2। और अब मास, मास भी दिया है 6 kg। और अब देखिए मास भी दे दिया, ठीक है, 6 kg। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इक्वेशन हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो आप, एस है टी स्क्वायर बाय 4। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस इक्वेशन में क्या करो आप, एस को, टी को 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4/4, 1 मीटर। तो अब हमें समझ में आ गया कि 2 सेकंड के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। W इक्वल टू MAS, मास 6 kg, एक्सेलरेशन 1/2, डिस्प्लेसमेंट 1। तो ये आ गया 3 जूल। तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर आ गया है। द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप। चौथा आंसर बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लिया, नोट जरूर करते चलिए। स्क्रीनशॉट तब मैं बोलता हूँ जब इमरजेंसी हो, अदरवाइज आपको नोट ही करना चाहिए। दूसरा, आपको, आप लोगों को अब तक एक चीज तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपका टेस्ट भी अच्छा होगा और फाइनल एग्जामिनेशन भी अच्छा होगा। और सिर्फ हमारे कराने से नहीं होगा, यहाँ पर आपको भी क्या है,
साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारी वर्कशीट्स करिए। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियसली कंडक्टेड पेपर्स है उनको सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्लास कॉपी को सॉल्व करिए, बार बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट, a stone of mass n is tied to a string of length L at one end, and by holding second end, it is whirled into a horizontal circle. Then work done will be. आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो हम इसको बहुत जल्दी इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत जल्दी हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो कि है 0 0। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा सर्कुलर मोशन कर रहा है बॉडी, हाँ भाई सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। बस आपको यही कंसेप्ट क्या करनी है, यूज करनी है। इसको आप नोट कर लीजिए। कम से कम अगर आप चॉइसेस नहीं नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन जरूर नोट करिए और करेक्ट आंसर भी नोट करिए। ये सब चीजें हैं, ये सिस्टमेटिक नहीं बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meters in it is given by the relation s equal to t square by 3। अब देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी अभी किया था। तो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस। तो हमें यहाँ एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर। पहले वेलोसिटी निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। 1/3 कांस्टेंट स्टूडेंट और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। 2/3 कांस्टेंट है और ये जो t है, t टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो एक्सेलरेशन तो आ गया। अब हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। एम ए एस, मास तो हमें दिया हुआ है 3, ये हो गया 2/3। अब हमें चाहिए 2 सेकंड में भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। चलो भाई उसको भी निकाल लेते हैं। इन 2 सेकंड, तो एस विल बी 4/3। कितना होगा? 4/3 होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिए, कितना होगा? 4/3। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आ गया 8/3। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन को जरा आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो दिया हुआ है भाई 3 kg। एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब बचा तीसरा पार्ट, भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ टी की जगह कितना पुट कर दिया आपने? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4/3। तो इस तरह से हम ये सब चीजें कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट हो गया. Yes. So what I should say for this? I can say only one thing. Most important and expected. A force. देखिए यहाँ जो फोर्स का फंक्शन दिया गया उसमें x भी है. 2xi प्लस 2j प्लस 3z स्क्वायर k. तो ये देखिए ये जो 2x होता है इसको हम बोलेंगे fx, x कंपोनेंट. ठीक है. अब बात करते हैं j के मल्टीप्लायर की. जो j से मल्टीप्लाई होता है वो कहलाता है हमारा fy. तो ये देखिए हमने fy की जगह कितना लिख दिया 2 और fx 2x है तो ये हमने 2x लिख दिया. अब बात करते हैं k के कोफिशिएंट की. किसके कोफिशिएंट की? भाई k के कोफिशिएंट की. k का कोफिशिएंट यहाँ पर है 3z स्क्वायर. देखो आप उसी को हम बोलेंगे fz, z कंपोनेंट. तो ये हमने fz की जगह क्या लिख दिया 3z स्क्वायर लिख दिया है. तो अब ये पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 1 to 3 to 361. तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का होता है, तीसरा z का होता है. तो x की लिमिट तो आ गई 1 to 3. ये देखिए अब मैं थोड़ा आपको इसको और अच्छे से बताना चाहता हूँ. x की लिमिट यहाँ देखिए जब पहली पोजीशन है वहाँ x की जो लिमिट है वो कितनी है? वो x की लिमिट कितनी है? देखिए x की वैल्यू कितनी है 1. 1 से कहाँ चेंज हो रही है 3. ये लिमिट ले ली मैंने 1 to 3. अब मैं y की बात करता हूँ तो y की लिमिट कैसे चेंज हो रही है? ये देखिए 2 to 6. ये हो गया 2 to 6. अब तीसरी बात करते हैं. z की वैल्यू चेंज हो रही है 3 से लेकर 1 तक. तो z की इंटीग्रेशन लिमिट होगी 3 to 1. अब बचा हुआ काम बहुत आसान है. 2 बाहर चला गया, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2. 2 बाहर चला गया, dy का इंटीग्रेशन. मैं आपको थोड़ा एक बार फिर से कुछ एक चीजें बताना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए. देखिए dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, dz का इंटीग्रेशन क्या होता है z. ठीक है. और x to the power n dx का इंटीग्रेशन होता है x to the power n plus 1 upon n plus 1. z to the power n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z होगा z to the power n plus 1 upon n plus 1. यहाँ कुछ नहीं किया हमने, x का इंटीग्रेशन कर दिया x स्क्वायर बाय 2. लिमिट रखनी है. dy का इंटीग्रेशन कर दिया, आप ध्यान दीजिए dy का इंटीग्रेशन कर दिया कितना y. और 3 बाहर चला गया तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा z क्यूब बाय 3. फिर लिमिट पुट कर दी. अब लिमिट कैसे पुट करेंगे? पहले x की जगह 3 रखेंगे, x स्क्वायर बाय 2 में x की जगह 3 रखेंगे. तो आप करके जरूर देख लीजिएगा. फिर यहाँ y की जगह 6 रखते हुए माइनस कर देंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए. बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन. सॉल्व करवाना चाहते हैं आप तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. तो ये देखो 2x स्क्वायर बाय 2, लिमिट तो देख लें क्या है 1 to 3. ओके 1 to 3.
इससे क्यों घबराते हैं आप लोग? इस पूरे में एक्स की जगह कितना रखना है 3, फिर माइनस करते हुए पूरे एक्स स्क्वायर बाय 2 में, ये देखिए 1 रखना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना टाइम हो गया आप ये नहीं सीख पाए। y की लिमिट क्या है? 2 to 6। तो पहले y को 6 रखना है, फिर क्या रखना है? 2 रखना है। ये बहुत बुरी बात है कि इस स्टेज में आकर, जहाँ इतना कम टाइम बचा है एग्जामिनेशन में, आपको इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? उसको सीखते क्यों नहीं हो? z³ by 3, और बाहर क्या था? मैं तो सॉल्व कर दूंगा, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना। और लिमिट्स क्या थी? 3 to 1। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं। इस पूरे z³ by 3 में z की जगह 1 रखा। ये बुरी बात है। 9/2 माइनस 1/2। अब आपको खुद ही सॉल्व करना है, आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। और ये हो गया 9। चलो कर देते हैं। 2 into 4, 2 into 4, और ये एलसीएम आ जाएगा 3। एक मिनट, 1 minus 27। ओके, 8, 8 minus 26, 16 minus 26. The answer is minus 10 joules. ये माइनस 10 जूल आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से इतनी लेवल होने के बाद मेरा काम है सॉल्व करना, पर आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। और रहा सवाल, मैंने हम बच्चों को थोड़ा डांट दिया, तो बुरा नहीं माने, आप पूछते रहिए, हम बताते रहेंगे। ओके, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा ध्यान दे दो, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम हाँ, ओके ओके ओके, देखो हम डांटते रहेंगे, आप पूछते रहो। अब देखिए, वह वंडरफुल क्वेश्चन। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F equal to ax plus bx square, where a and b are constant. Find the work done in stretching the unstretched rubber band by L। तो देखिए, ये वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफ डी एक्स 0 to L। अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड का मतलब लोअर लिमिट 0 है, और हमने रबर बैंड को L स्ट्रेच किया, इसलिए 0 to L। अब क्या करना है? F की वैल्यू रख देनी है, ax प्लस bx स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने से पहले आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, b भी बाहर आ जाएगा, 0 to L x स्क्वायर dx। अब क्या करना है? x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x स्क्वायर बाय 2, 0 to L, और x स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x³ by 3, 0 to L। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर तैयार है। We will put down the limits। तो W इक्वल टू A L स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि लिमिट पहले L रखेंगे और बाद में माइनस करते हुए 0।
यहाँ पे भी एल, फिर माइनस करते हुए 0, बी एक्स क्यूब बाय 3 है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा बी एल क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, ठीक है। तो डब्ल्यू हो गया ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3। तो इस तरह से आप आंसर्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसे R2 बोलेंगे, 2 बार रिवाइज करो। कॉपी में क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कॉपी काम आएगी, उसमें थ्योरी भी है, फॉर्मूला भी है, क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशन भी है, ऑल इन वन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं। we will take them in the next class। और ये जो